कनाडा में इलेक्शंस खत्म हो गए, उसी दिन रिजल्ट आ गया शाम में। 2-3 घंटे में हमको एहसास हो चुका था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है और कौन सी पार्टी जीतने वाली है। हैरत इस बात की होती है, एक आदमी जख्मी नहीं होता, मरना तो बहुत ना दूर की बात है। पुरअमन तरीके से इलेक्शन होते हैं, शराफत के साथ लोग अपने अपने वोट डालते हैं, पूरी प्राइवेसी मेंटेन होती है और आपको इलेक्शन में इज्जत के साथ आपसे वोट लिया जाता है, इज्जत के साथ आपको वापस भेज दिया जाता है। अब 2 महीने पहले तक लिबरल पार्टी के जीतने के कोई चांसेस मौजूद नहीं थे। कंजर्वेटिव पार्टी सर्टेनिटी के साथ न जीत रही थी, यानी कि यह तय हो चुका था और लोग बेजार हो चुके थे। मैं खुद कंजर्वेटिव पार्टी को वोट डालना सोच रहा था। उसके बाद ट्रंप साहब की मेहरबानी, कनाडा को 51st स्टेट तक कॉल करने लगे और कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर प्रो ट्रंप के बयान दे रहा था और कैनेडियंस थे गुस्से में। हम तुमसे अलग है, तुम अमेरिकन्स अलग है, तुम हमसे इंफीरियर है, हम तुमसे सुपीरियर है, हमारा एजुकेशन तुमसे अच्छा है, हमारे पास मेडिकल फ्री है, हमारे रोड्स तुमसे अच्छे हैं, हमारा मुल्क न पुरअमन है, तुम्हारे मुल्क में ये है, गुर्बत है। अरे एक 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 कैनेडियन से बात करिए आप, स्पेशली सफेद फार्म से, तो इस कदर गुस्से में है उन्हें, इस कदर फ्यूरियस है उन्हें, उठा के जो वो लिबरल पार्टी को डाल दिए वोट। अरे वो तो वो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर अपनी सीट भी गंवा चुका है। America's betrayal. As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. But आप सोचिए, अपनी सीट गंवा चुका है भाई, क्या बोलना बताइए। इस कदर गुस्से में कैनेडियंस, और ये जो 160 ऑड सीट्स आए हैं, ये ऐसे है जैसा कि लिबरल पार्टी 300 सीट्स लाई है। ये इतने नाराज थे लिबरल पार्टी से लोग, मगर अपनी सीट भी गंवा दिया और हम तो डूबे सनम, पूरी पार्टी को डुबा दिया। तो अब जहां पर सारी दुनिया में कंजर्वेटिव पार्टीज आ रहे हैं, कनाडा मेंटेनिंग द लिबरल पोस्चर, 15 साल हो गया है, लिबरल पार्टी जीत रही है। इस वक्त भी लिबरल पार्टी आ गई नए प्राइम मिनिस्टर के साथ। And the President of the United States is taunting them. Quote, "Good luck to the great people of Canada," President Trump wrote in a Truth Social post this morning, adding, quote, "Elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half, increase your military power for free to the highest level in the world, have your car, steel, aluminum, lumber, energy, and all other businesses quadruple in size with zero tariffs or taxes if Canada becomes the cherished 51st state of the United States of America." John King spent time... Never here in the United States. There's a big national election, and Donald Trump is by far the most unifying force. You speak to voters in Canada, and they can be conservative, they can be liberal, they can even be more to the left of the Liberal Party, support the New Democrats or support the Green Party. Listen here, 3 different voters, this is in Ontario, say, what's your number 1 issue in this election? Donald Trump. I feel like he's a bully in this situation. We're supposed to be allies. You know, and it's only been 3 months into the term. I never thought I would put up a Canadian flag, but I think when it comes down to crunch time, Canadians really gather up. There is no friends anymore. The biggest thing in Canada is we have friends all over the world. How many friends does Americans have right now? Trump's insults about 51st state, about calling the Prime Minister governor, they have created this wave of nationalism in Canada. 3 of the voters you saw there, the 2 women, sisters-in-law, and Toby Gorman at the hockey rink, they were going to be Green Party voters. But they want whoever wins, they know the Green Party can't win enough seats to elect a Prime Minister. They want that person to have a mandate to stand up to Trump. So they are going to vote Liberal and give up who they would normally vote for because of this. अब कैनेडियन से 2 बातें हैं। अब मेरा सवाल कैनेडियंस से है
तुम इतने मासूम नहीं है, इतने मासूम भी नहीं है। ठीक है, अमेरिका जो है ज्यादती कर रहा है, बेशक कर रहा है, लेकिन तुम्हारा अपना रवैया क्या है, हमारा अपना रवैया क्या है। अमेरिका अफगानिस्तान में गया, आप भी दुम छल्ले बन के गए उनके पीछे। अमेरिका इराक गया, यूक्रेन गया, फलस्तीन में एक ना पॉलिसी है, आप भी दुम छल्लों की तरह उनके पीछे गए। इसका क्या करेंगे? आपको इराक मुल्क नजर नहीं आया? अफगानिस्तान एक मुल्क नहीं है, यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हो रही है, लाखों आदमी खत्म हो चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप नेटो के साथ मिल मिल के गए, आज वो अमेरिका आपके ऊपर आ गया है। मैं जब भी बॉर्डर क्रॉस करता था तो मैं सोचता था यार ये कब तक चलने वाला है रोमांस? रोमांस, ऐसा रोमांस है ये 6000 किलोमीटर दूर। ऐसा कार्ड बताओ पास, अमेरिका में दाखिल हो जाओ। अमेरिका यानी अमेरिकन जब चाहे जब यहां जाते, जब चाहे जब हम चले जाते। ऐसे कुछ लोग सिगरेट खरीदने जा रहे हैं, कुछ लोग ना शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोग वहां से आ रहे हैं, कुछ लोग यहां से जा रहे हैं। ये कब तक चलने वाला है? मैं कभी इसको कबूल नहीं कर सका, आज नहीं 20 साल पहले नहीं। मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है, आज नहीं कल। उसकी वजह क्या है? अमेरिका एक तकरीबन बैंकरप्सी के करीब है, उसके अपने पॉलिसीज की वजह से। उनकी आबादी 40 करोड़ है, बेइंतहा रिसोर्सेस उनके पास है, लेकिन कनाडा के पास जो रिसोर्सेस है उसका मुकाबला नहीं है। यहां पर तो खाली 4 करोड़ की आबादी, खाली 4 करोड़, और रिसोर्सेस में लंबर लकड़ी। एक कैनेडियन को 6 से 8 हजार झाड़ है। आप अंदाजा लगे, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा जाएंगे, जो मैं गया था, रोड से गया था, रोड से 5000 किलोमीटर दूर, मैं लंबर को देखा हूं जिस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हर साल कनाडा में 52 करोड़ झाड़ लगाते हैं लोग। तो कितना झाड़ काटा जा रहा है, उससे कागज निकलता। गैस आपके पास, पेट्रोल आपके पास। अब देखो गैस, ऐसा चूल्हे को ऑन करो, चलो गैस ऑन। पेट्रोल ऐसा आ जाता। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, यूरेनियम, डायमंड्स, गोल्ड, डेयरी, पानी। हमारे सूबे में दुनिया का 35% पीने का पानी है। हेलो, 35% हमारे सूबे में, जिसकी आबादी बमुश्किल करोड़ से ज्यादा नहीं। इस सूबे के में 35% पीने का पानी है, जहां मैं रहता हूं। और 5000 लेक से अतराफ, 5000 पीछे, हमारे मकान के पीछे लेक जाती है, 200 किलोमीटर लंबी, पता नहीं 100 किलोमीटर अमेरिका के बॉर्डर तक। इतने रिसोर्सेस है। डेयरी आपकी कैसी है? गंदम, गेहूं, 1-1 लाख एकड़ के ऊपर ज़राअत होती है। लबरेज है, रिसोर्सेस है। आबादी सिर्फ 4 करोड़। तो भाई अमेरिका की नजर तो पड़ेगी ना, अमेरिका को तो जरूरत है। और ये बॉर्डर जो छुटा हुआ है 6000 किलोमीटर का, जहां एक मिलिट्री का आदमी नहीं है। बाय द वे, जब अमेरिका और कनाडा की जंग हुई थी 100 साल पहले, तो कनाडा अमेरिका को डिफीट दिया था। शायद लोगों को नहीं मालूम बात है। आज का सिचुएशन अलग है। तो अब कैनेडियंस इस कदर गुस्से में है। अब कनाडा को करना क्या चाहिए? इतने रिसोर्सेस है हमारे पास, इतने रिसोर्सेस है। चाइना से ताल्लुकात अच्छे, इंडिया से अच्छे, यूरोप से अच्छे, मिडल ईस्ट में पॉलिसी बदली है, और ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उससे तो अच्छे है ही है। तो अब इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आपको ताल्लुकात रखना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए, लिबरलाइज करो इकोनॉमी को। अरे ये आलम है, तेल हमारे पास, ऑयल हमारा, जाता अमेरिका, रिफाइन वहां होता, आता यहां पर। क्यों? हमको रिफाइनरीज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना खराब हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप पेट्रोल ना इस्तेमाल क्यों करते? आप मत करिए। ये तो ना हिपोक्रेसी है ना भाई,
ये तो मुनाफिकत है। तो हमको रिफाइनरीज चाहिए और गैस पाइपलाइंस पॉलिसीज चेंज करो। ये एनवायरमेंटलिस्ट को बाजू हटाइए, हटा के इकोनॉमिकल बूम लाइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाइए, टैक्स को ना कम करिए और अमेरिका से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब तो प्राइम मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला बयान दे रहा है कि हमारे अब ताल्लुकात अमेरिका से कभी भी वैसे नहीं हो सकते। हो सकता पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, नहीं मालूम मुझे, लेकिन यह बयान दिया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कनाडा शॉक में है कि ये अमेरिका हम पे पलटेगा। और जाहिर सी बात है किसी वेस्टर्न कंट्री पे हाथ डालना आसान नहीं है। अमेरिका के लिए भी कनाडा के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा यूरोप खड़े हो जाएगा उसके। अब कनाडा को करना क्या है? यूरोप से करीबी ताल्लुकात है, चाइना से ताल्लुकात, इंडिया से ताल्लुकात, मिडल ईस्ट पॉलिसी बदलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, रिसोर्सेस अंबार है, उसकी तो कमी है नहीं, मैन पावर लाइए। खाली आबादी आपकी 4 करोड़ और सेकेंड बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद फुल ऑफ रिसोर्सेस। टैक्सेस को कम करिए, साउथ अमेरिका मेक्सिको से ताल्लुकात रखिए, ब्राजील से क्लोज करिए, कैरिबियन कंट्रीज से, अफ्रीकन नेशन से, इंडिया से, चाइना से, ईस्ट एशिया से खरीब ताल्लुकात, खरीब और ट्रेड को ज्यादा मजबूत करिए, इन्वेस्टमेंट को लाइए, इमिग्रेशन बढ़ाइए। और आपको इमिग्रेशन में लोग कनाडा को भाग भाग के आएंगे। आप इमिग्रेशन की पॉलिसी को सही करिए, एजुकेटेड पीपल को लाइए, स्किल्स को लाइए, अच्छे लोगों को लाइए। पॉलिसी बदल के वो आबाद दूसरी जगह पे होना, ऑन्टारियो में नहीं होना, टोरंटो में नहीं होना, कहीं और होना। एक्सपैंड करिए, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, नॉर्थ साइड, लोग जाएंगे बराबर काम करने के लिए। और आप क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है, टैक्स बेस बढ़ेगा आपका, और टैक्स को कम करिए और इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जहां पर अमेरिका गया आप भी पीछे चले गए, वैसा मत करिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखिए। कनाडा इतना बड़ा मुल्क है और अगर इसमें 10-15 करोड़ की आबादी हो गई तो इट विल बी ए मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।